is all this make in India and all. Nobody will come from abroad and do it. बिल्कुल. You guys, people here have to do it. Yes. It's and all. So quite an interesting journey you have had. तो थोड़ा आपने BSSI metal you call it, right? It's BSS Metal Eye. Metal eye. Metal Eye. Metal Eye is it's a French word जी. which stands for military material and equipment. Okay. And BSS, because you know when Parikar sir motivated us, I asked him, sir, you corruption act. जी. So any amendment which happens has to be automatically be incorporated in the policy. Yes, बिल्कुल. So this issue I raised with the decision makers कि आपको IPBG की जरूरत क्या है? आपका लॉ बदल गया है. जी. पहले सिर्फ लेने वाले PC एक्ट आ गया तो PC एक्ट में अमेंडमेंट आ गई है. जी. That was all thanks to our Leadership, present leadership. leadership and somebody. जी. तो आप कहीं फंसेंगे तो आपका लॉयर आपको हेल्प करेगा. जय हिंद ऑल द व्यूअर्स जो हमारा चैनल वकालतनामा देख रहे हैं. आज एक बहुत ही यूनिक वीडियो हम बनाने जा रहे हैं जिसमें बात डिफेंस की भी होगी और बात लॉ की भी होगी. मैंने अपनी सर्विस में जितना कुछ इस ऑर्गेनाइजेशन को जिसको जो हमारी कंट्री का ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन है द आर्म्ड फोर्सेस ऑफ इंडिया, जितना कुछ देखा जितना कुछ सीखा मैंने एज एन इनसाइडर देखा. जो भी अपॉइंटमेंट मुझे मिली मैंने की और जितना कुछ इन्फॉर्मेशन से मैं प्रिवी था उतना कुछ मुझे मालूम है. लेकिन वी ऑल्सो नीड a bird's eye perspective, a perspective of somebody who has been on the outside and still seen the system very very closely. आज विकी जी हमारे साथ हमारे स्टूडियो में आए हैं. आपका बहुत स्वागत है विकी जी एंड थैंक यू फॉर कमिंग ओवर. Thank you, Colonel, for inviting me. Yes, so it's always a pleasure to meet people like you who've been working in this field. हम लोग आर्म्ड फोर्सेस में आर्म्ड फोर्सेस के लिए काम करते हैं और आप लोग आर्म्ड फोर्सेस में नहीं रहते हुए भी उनके लिए काम करते हैं. Exactly. So let us tell our viewers something about yourself. आपकी जर्नी के बारे में थोड़ा सा बताएं. कैसे शुरुआत हुई, कहाँ से पुश मिला, किसी का मोटिवेशन था और कैसे आप इसमें आए, एंड देन अपनी कंपनी के बारे में भी थोड़ी सी बताइए. I will like to. It is an interesting journey, though. I've been involved with broadcast media and telecommunication जी. for a long time. Right. Started as a cable company. Before that, I was in the billboard business. Okay. So I have done a lot of things like facility management, Okay. even to that extent a PR company way back in 1989. What a transition. Okay. So things, always had the scientific bend of mind. Right. That helps me to understand technology also. So, and I get bored also of doing the same thing again and again. Okay. That is my problem or my advantage. Oh, that's a or lesson whatever. for everyone. Yeah. So, once it becomes monotonous, जी. there is no thrill, जी. I get bored. Okay. So I have established a security company in collaboration with a British security company. A lot of many things I have been doing. जी. Like you can call me a serial entrepreneur. Right. And that's how I've been. जी. What got me into defense Right. was exactly sometime in 2016. Okay. Early. I worked with a scientist and an innovator. With him, I did some IPTV patents way back in 2003. Okay. We developed own digital over analog system and all those kind of things. Right. So he was very good friends with late Dr. Parikar sir. Okay. हमारे पूर्व रक्षा मंत्री हैं. He became the defense जी. minister in 2016, I think, जी. May or June. जी. So this gentleman comes from Bombay and they are good friends. He told me, let's go and meet South Block. I am meeting him. Okay. So, and that same time, the MOS defense was Dr. Bhamre. Right. From Dhule, he comes from a medical background. जी. So it was a very interesting meeting with Parikar sir. Firstly, he said something called, is all this make in India and all. Nobody will come from abroad and do it. बिल्कुल. You guys, people here have to do it. Yes. And then he also said that Indians are basically a trader mindset. Right. Okay, which I also agree. We never हाँ जी, invested. इसमें कोई बुराई नहीं है. बिल्कुल. We never invested anything in research, design, development, indigenous, because liberalization जी. was actually that killed our own industry. बिल्कुल कह सकते हैं.
Yes. That's what I feel. You know, even the electronic manufacturing industry, everything it got killed. Now that was a very interesting few hours spent at South Block with Parikar sir. And he said, ki, you know, this is a challenging work. People who are capable to take a challenge should take it and do it. Okay. So my only question was to Parikar sir was, sir, the policies and the deep pockets. Right. This is what is our perception about defense. जी. And the perception was arms dealers. ओके हाँ बहुत ऐसी सुनने को आती Arms है बातें। dealers and जी, you know the middlemen. बिल्कुल He said, policy, leave it to me. We are working on it. We want to bring जी technological advancement in this Right. field. And because it's very, he gave me example of DARPA, ओके which is actually what we have DRDO. जी जी And then he also told us what were the problems. You know, in the previous regime, जी nothing was being done. And as I told you, liberalization killed our own industry. The innovation got killed ओके because it was easier to get यस from China or Taiwan and sell it here. So राइट small things what we used to make before even stopped ओके getting manufactured in India. ओके A lot of industries, like in Punjab, there was a state-owned company called Panwire, ओके Caltron, Kerala. which all vanished and got They killed used actually. to make components. जी So when you stop making components, how can you have superiority in electronics? ओके I have been also involved with TV manufacturing business Ji, when I was in school, and you know, my uncle was running a TV manufacturing company in Meerut. राइट Learned a lot from him. I used to do procurement for him from Lajpat Rai market, the kits and all. तो क्वाइट एन इंटरेस्टिंग जर्नी यू हैव हैड तो थोड़ा अपने BSSI मेटल यू कॉल इट राइट It's BSS Metalai. मेटल आई Metalai. Metalai Metalai. is it's a French word जी which stands for military material and equipment. ओके And BSS, because you know when Parikar sir motivated us, so even I asked him, sir, you give us a name also, and within a month we will incorporate the company and will start the work जी with your blessings. So he said, Bharat use karna. बिल्कुल And then he was the person who actually told me Bharat and India का फर्क क्या है. अच्छा जी You know, I was actually not knowing. He told about India is because of the tribes and all those things. You know, the जी. theory he told me. कह रहा भारत word use करना. तो Bharat was not available. So we put BSS. BSS stands for Bharat Supply and Support. भारत सप्लाई एंड सपोर्ट Supply was already happening. जी Now our thing was support. ओके Now when you say support, it means indigenous manufacturing, even assembling, transfer of technology, innovation, development. जी So that how BSS Metalai Limited got incorporated Right. in 2016. I think 3rd of August, I think was the date. ओके And it's a all friends owned company. अच्छा I connected with some friends. One gentleman, one co-founder was that time a retired DGP of Uttarakhand. जी And the colonel coming together, you know, that's how it started. An old friend with whom I started Temple Security, a franchise of UK Temple Security. So we all got together and, you know, we said, you know, the idea was, you know, we'll have a limited company, eventually we'll go public and all those things. राइट That was with this vision. The mission was make in India, self-reliance in defense, ओके and that's what we are thriving on right now. वाह सो वंडरफुल सो दोस्तों हम सबको पता है कि मनोहर पारिकर सर जो थे हमारे एक्स डिफेंस मिनिस्टर रह चुके वो एक बहुत बड़े इंस्पिरेशन थे हमारे लिए और विजनरी भी थे एंड जैसा कि विकी जी बता रहे हैं कि भारत नाम उनको उन्होंने आपको सुझाया एंड बहुत ही अच्छी बात है सो अब मैं थोड़ा सा कुछ और टॉपिक्स के ऊपर आना चाहूँगा वी हैव मल्टीपल इश्यूज़ एक्चुअली अभी मैं सामने देख रहा था यहाँ पर ईयर एंड रिव्यू 2024 की डिफेंस मिनिस्ट्री की हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रही है अब उसके अंदर हम अगर आपने बात की मेक इन इंडिया आपने वहाँ से उस टाइम से शुरू कर दिया था मेक इन इंडिया के बाद आत्मनिर्भरता इन डिफेंस का कॉन्सेप्ट आया आईडेक्स वगैरह हुई टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन की बात की गई एक्सपोर्ट पे जो है इंपोर्ट पे रिलायबिलिटी कम करने की बात की गई और इसके साथ में प्रोक्योरमेंट्स इंडिजिनस प्रोक्योरमेंट्स की बात की गई इंडिजिनस वेंडर्स को बढ़ाने की बात की गई
तो सबसे पहले आते हैं हम लोग टेक्नोलॉजी पे, क्योंकि आपने बोला आप टेक्नोलॉजिकली savvy भी हैं, तो टेक्नोलॉजी का इन्फ्यूजन इन डिफेंस। सो अगर हम बात करें कि उसको क्या स्ट्रीमलाइन है अभी, क्या उसमें कोई GSQRs इस तरह से हैं जिसकी वजह से इन्फ्यूजन की थोड़ी सी स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है? आपका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बताइए सो दैट हमारे व्यूअर्स इससे थोड़े एजुकेट हो सके। Colonel, technology is an ongoing process. राइट। It is not something that you make something today. It's an ongoing, progressive method of doing things. So, technology will always change. Like in telecom, we have seen how fast the technology has changed. From 2G, 3G, 4G, 5G. Now, when we talk about technology and when we talk about Atmanirbharta, जी। what our honorable Prime Minister also makes a lot of उन्होंने काफ़ी पुश दिया है इस चीज़ को, आत्मनिर्भरता को। with policy changes. जी। पॉलिसी चेंज बनाया उन्होंने। एक बहुत बड़ा एंट्री बैरियर था, ओके। which a lot of people might not know. Even we were not aware when we got into defense. ओके। To get into any tender process, RFP submission, before the RFI and then the RFP, there used to be a policy of IPBG. IPBG, ओके। Now IPBG was Integrity Pact Bank Guarantee. अच्छा, हाँ, कुछ पैसा बैंक में शायद उसमें रखना होता था, ऐसा कुछ? No, it is a guarantee. You Okay. put the money in the bank. Now that used to be completely arbitrary थी। किसी प्रोजेक्ट में आपने 2 करोड़ रुपए रख दी, किसी में आपने 70 लाख रख दी, किसी प्रोजेक्ट में हमने एक किया प्रोजेक्ट उसमें सिर्फ 5 लाख रुपए थी, ओके। डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट्स। अभी IPBG was the entry barrier ओके। फॉर द इंडिजिनस for the participation. पार्टिसिपेशन ओनली, ओके। And this IPBG was कि the buyer will not accept bribe and the seller will not give bribe. Integrity Pact Bank Guarantee. जी। जो थोड़ा रिसर्च किया and thankfully lawyers helped me in that. ओके। Because as I told you, All Friends company, my company also have 2 great legal minds ओके। as co-founders. ओह वंडरफुल। जी। So we did research thanks to the lawyer and their team, and we found out कि 2018 there has been an amendment in the PC Act. PC Act is Prevention of Corruption Act. जी। So any amendment which happens has to be automatically be incorporated in the policy. यस, बिल्कुल। So this issue I raised with the decision makers कि आपको IPBG की जरूरत क्या है? आपका लॉ बदल गया है। जी। पहले सिर्फ लेने वाले PC Act आ गया तो PC Act में अमेंडमेंट आ गई है। जी। That was all thanks to our लीडरशिप, प्रेजेंट लीडरशिप। leadership and somebody who also understood, या बिल्कुल। like Bipin Rawat साहब. जी। Finally, this was abolished in April 2022. 22, ओके। The policy change. जी, Okay. You have to convince what is the pros and cons. After that, you see, there is to be participation from 3-4 vendors. I myself participated in one project which had 4 vendors. Participation from 4 vendors who went till the trials. बिल्कुल। But unfortunately, the pandemic started, the lockdown started. We could not go for the high altitude trials. It was an interesting project, a nano technology based something we wanted to give to the Indian Army. ओके। Now, जब आपको IPBG खत्म हो गया, आपका पार्टिसिपेशन बढ़ गया। जी। सेकेंड गुड ऑप्शन वाज EMD रिमूव कर दिया फॉर SMEs एंड स्टार्टअप्स। Okay, so which was a welcome initiative? Definitely. I have participated in some projects, big projects also, smaller and big, and I don't have to block money on EMD and all. Right. IPBG खत्म हो गया, EMD में मेरे को पैसा नहीं भरा। 25 करोड़ का एक EMD था। जी। अब 25 करोड़ आप अगर बैंक में डालोगे और उसके लिए सिर्फ ये गारंटी देनी है आपने कि ये 18 महीने के लिए आपका पैसा, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर Okay. small businesses, entrepreneurs. It is Beyond actually, the question. So your participation will not be there. You are putting an entry barrier in participation. Now participation, restricting participation means selection of best equipment, advanced equipment, cutting edge technologies. जी। But somebody will bring something which was developed 30 years back or 25 years back,
and we'll push it. हाँ बिल्कुल। So- तो फिर वो so- टेक्नोलॉजी कहाँ आई, वो इम्प्रूवमेंट कहाँ हुए, सिस्टम्स वही प्रोक्योर हो Colonel, innovation will only happen जी। at small businesses. Just understand that. Innovation will only happen in small businesses. The MSME is only where all the innovation happened. बिल्कुल It was our Indian agriculture sector yes. which did so many innovations, या jugaad, जी। but no patent. Same thing is was done in America, they would have got it patented. यस। सो अगेन वही बात घूम फिर के आ जाती है कि लॉयर्स की इसमें काफ़ी एक अहम भूमिका होती है। देखिए हम आगे के सेगमेंट में बात करेंगे डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर की। DPP 2020 में एक बहुत सारे बदलाव आए थे। वो तो हम सब को जो आर्मी में हैं या ऐसे डिपार्टमेंट्स में हैं जो इसको डील कर रहे हैं, उन्होंने एक पर्सपेक्टिव से उनको पढ़ा, उसकी अध्ययन किया। आपको उससे क्या चेंजेस फील हुए, इसके बारे में हम बात करेंगे। वी विल कम बैक अगेन एंड वी विल टॉक ऑन दैट टॉपिक। सो व्यूअर्स, अब हम आगे बात करेंगे डिफेंस एक्विजिशन की। और यहाँ पर रिपोर्ट में मैं देख रहा हूँ DAP 2020 जो कि ड्रिवन है बाय द टेनेंट्स ऑफ द डिफेंस रिफॉर्म्स एंड आत्मनिर्भर भारत अभियान। सो इसमें विकी जी, मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगा कि एक पैरा यहाँ मेंशन है कि लिबरलाइजिंग द फाइनेंशियल पैरामीटर्स ऑफ वेंडर सिलेक्शन क्राइटेरिया फॉर MSMEs। तो इसके बारे में आप चूँकि एक उस टाइम पे 16 में स्टार्टअप ही थे और MSME में ही शामिल होते हैं, तो ये फाइनेंशियल पैरामीटर्स कहाँ तक लिबरलाइज हुए हैं, इसमें प्रोक्योरमेंट में, कैपिटल प्रोक्योरमेंट में किस तरह की चीज़ें अभी चल रही हैं? आप कुछ अपना प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस शेयर करें। Colonel, one thing I just tell you, एक बहुत overnight nothing happens. जी It's a process. जी The process was started by the Honorable Prime Minister with the Make in India initiative and other, relaxations. Now things will move in its own way. जी आपको ऐसा नहीं हो सकता कि आपने कल से बोल दिया और आपको आज से सब कुछ मिल जाएगा. It's a long driven. आपने we missed a bus 40 years back or 35 years back जो मैन्युफैक्चरिंग की थी, which our not so friendly neighbor जी you took the opportunity. We missed that bus. Otherwise ऐसा कुछ नहीं है कि they have more brain or something. टैलेंट की यहाँ भी कोई कमी नहीं है। Talent, there is no dearth of talent in our Yes, country. yes. They are fine workers. बिल्कुल Whatever technology today they have, and the technological superiority they have, जी if not many people know, is thanks to Russia. Disintegration of Soviet Union. Because that time, कितने सारे साइंटिस्ट जिनको प्रॉब्लम आ गई फाइनेंशियल आफ्टर डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, दे सोल्ड ऑफ देयर IPRs टू चाइना. ओके या दिस वेरी फ्यू ऑफ अस नो अबाउट दिस जो आप ये बता रहे हैं। and that gave them something to start. The technology आ गई, manufacturing. I told you, Chinese is a good worker, not an innovator. जी Innovative mind. Recently I was seeing the contribution of Indians. ओके I'll not say India, but yeah, Indians. जी Fiber optic, Indian, बिल्कुल which is used so extensively Everywhere, in telecommunication. across continents. Even medical, everywhere. It's optical fiber. So there has been a role of Indians. Now these, our people, they never got recognition. जी Money was not there. So though these people went to America, Canada, Europe, ओके Australia, a brain drain. ब्रेन ड्रेन बोलते हैं जी बिकॉज 40 साल पहले 45 साल पहले वाकई यहाँ पे चीज़ें नहीं थी. जी और स्पेशली इन डिफेंस में आर्म्स डीलर होते थे, मिडिल मैन होते थे. जी बिजनेस वॉज लाइक दैट. देयर वाज नो डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स. हाँ टुडे आई एम प्राउड टू से वी हैव अ सोसाइटी फॉर इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर्स. जी और आई थिंक 400-500 मेंबर्स आ गए हैं उसमें SIDM। Yes, SIDM is having almost more than 500 members. वेरी फ्यू ऑफ अस नो अबाउट DISA आल्सो। आप बात कर रहे थे। DISA is another organization which was initiated by a group of people, like-minded group of people, which is for Defense and Strategic Industries Association. जी They are doing excellent work. I know. जी In terms of making representations, in terms of, getting clarity on guidelines, processes, जी। they are also very proactive. So is
So what I say, they can only be our voice or a bridge between the government and the private industry. जी But for the private industry to get कुछ तरह का आपको कोई कंफ्यूजन आ गया, आपको प्रोक्योरमेंट प्रोसेस में कहीं पे प्रॉब्लम आ गई, जी आपको वो रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है बिकॉज उसका इंटरप्रिटेशन जो है आर्बिटरी है या सब्जेक्टिव है, जी तो वहाँ पे देन कम्स द लॉयर कम्युनिटी. बिल्कुल सही. Lawyer community can ensure that the clarification comes by intervention of the court, जी बिल्कुल. a judicial review. और इनफैक्ट ये जो इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट की बात ही नहीं आएगी अगर हम लॉयर्स को पहले स्टेज से ही इंटीग्रेट कर लेते हैं. If they can be that in can the avoid litigation, a lot of litigation. Colonel, if they can be inducted at the policy making time, that is the best thing to have. to vet the documents which are being prepared. Why not? Like GSQRs की बात की हमने. बिल्कुल. और जी All good projects, in the civilian industry nowadays are being vetted by the big four or big six. KPMG and all, they are vetting, they are making the RFPs. राइट. And I hardly see disputes coming from there. बिल्कुल. Railway is doing. Certain projects I have worked with, so I understand. There's no scope for any dispute or ambiguity or interpretation because it's been done by professionals राइट. who have the ground knowledge. जी So lawyers association, or you can say their feedback would be very important. yes and why not they can be impaneled with the say the Ministry of Defence. Why not? और काम कर सकते हैं और बहुत सारे ब्राइट यंगस्टर्स हैं जो कि इस डायरेक्शन में काम कर सकते हैं. Again, lawyer, I tell you, it's a noble profession. जी. It's one of those 5 noble profession. यस. यहाँ पे मुझे पता नहीं, दिल्ली में नहीं सुना मैंने वर्ड. छोटे शहर में आप अगर जाओ तो लॉयर को आज भी लोग वकील साहब बोलते हैं जी बिल्कुल. और दे आर रिस्पेक्टेड. यस. There they do Absolutely. lot of pro bono work also. यस. I know because my Tauji was a lawyer. ओके. So I spent so much time with him Right. in my childhood. If you will not believe, he gave me to read IPC. ओके. 4 volumes of IPC was there that time. जी. The detailed one, not the. He said you take these and read it in your free time. ओके. That time there was no TV, there was no या वो डॉक्यूमेंटरीज आती हैं वो जैसे आईपीसी पे हम उसको डॉक्यूमेंट्री बोलते हैं तो मोटी किताबें होती हैं वो volumes, AIRs जो होते big थे, volumes, हाँ जी, वॉल्यूम्स, जी उन्होंने दे दिया कि go. जी. I used to clean his chamber sometime. ओके. That was my duty when I used to go for holidays. ओके. चलिए ये तो खैर बातें हो गई, आपकी शुरुआत हुई. सब कुछ हम जानते हैं कि एवरीथिंग इज़ नॉट ब्लैक एंड वाइट एंड देयर आर सम ग्रे एरियाज. तो आप प्लीज़ वो थोड़े एक्सपीरियंस शेयर कीजिए जहाँ कहीं पे आपको लगा कि स्ट्रीमलाइनिंग की ज़रूरत है, सिस्टम्स प्रोसेसेस में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है. एंड लेट्स बी फ्रैंक अबाउट इट एंड इट्स ऑल फॉर आवर गुड. सो प्लीज़ ब्रिंग आउट सम पॉइंट्स. Colonel, I believe something that there's no point we buying or going for a obsolete technology. बिल्कुल सही. जी. Especially something which was designed, developed 30 years back ओके. by a foreign company. I call it Gen 1 or Gen 2 equipment. Like any specific example you want to give? In weapons. Okay. In weapons, so we are still going Slow. slow, very slow. And I tell you, INSAS is not a bad weapon. जी. वो FN Hertzl का बिल्कुल. उसके अंदर स्पेक्स डाले हैं, बट द प्रोडक्शन वाज बैड. ओके. देखो वेपन एक ऐसी चीज़ है, व्हेन बहुत लोग बोलते हैं जी AI आएगा, आज ड्रोन आ जाएगा, द वॉरफेयर सीन विल चेंज. या. ऐसा कुछ नहीं है. सेम वे लोग बोलते थे अभी कुछ टाइम पहले तक AI आ गया है, लॉयर्स की ज़रूरत नहीं होगी, मेडिकल ऑफिसेज में मेडिकल फील्ड के लोगों की ज़रूरत नहीं रहेगी बिकॉज AI विल डू. यू नीड मैन ऑन द ग्राउंड, बट द मैन बिहाइंड द मशीन. ठीक है, AI will do the drafting and but the vetting and the presentation in the court will be the lawyer. बिल्कुल सही. AI will not go there and present your case. जी. It is only it's a tool. बिल्कुल. Medical maybe people started a lot of going on online and using online medical, but anyway you need a family doctor. Of course. Every person, like you have a family doctor,
ऐसे आपका एक फैमिली लॉयर भी होना चाहिए, यस, इट्स अ वेरी वैलिड पॉइंट। बिकॉज आपका फैमिली लॉयर है जी। तो आप हमारे देश में सुरक्षित हो, आपका कोई राइट डिसरप्ट नहीं होगा, आपकी प्राइड को कोई दिक्कत नहीं आएगी, जी। आपकी सेल्फ एस्टीम बनी रहेगी, जी। आपकी डिग्निटी बनी रहेगी, थैंक्स टू द लॉ। उसी चीज़ को सुपर इम्पोजिंग इट जो हम लोग बातें कर रहे थे ऑन द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस। तो वेपन्स की आपने बात की, सो मैंने देखा है कि ऑब्सोलीट टेक्नोलॉजी आपने बोला 30 साल पुरानी लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ऐसा कोई वाक़या है जो आपको पता चला या फिर आपको उसमें कुछ दिक्कतें फेस आई आपको एज अ स्मॉल वेंडर और एमएसएमई? We participated in one of the projects, जी। and after lot of research, I was working on this weapon with an American guy before, American company, small American company, but again, a lawyer turned a weapon designer अच्छा, क्या बात है? with passion for weapon designing. Okay. Small US company, but have a very excellent weapon in terms of CQB carbine. They have prepared it. It's all modular. ओके। अब वो के साथ करके अगर हम अब जैसे 2019 में जस्ट बिफोर इलेक्शंस आवर गवर्नमेंट डिड अ मेजर टाई अप विद रशिया अंडर अ इंटर गवर्नमेंट एग्रीमेंट, एंड इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड वाज incorporated, established. Modi Saab, Putin Saab, they all got involved, and we started getting AK-203 assault rifle Yeah, I was coming to that. manufactured in India. जी। Now, with this scenario happening, आपके पास ऑलरेडी एक फैक्ट्री है, आपको ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी मिल गई है, AK-203 आप यहाँ बना रहे हो. जी। IRPL has started supplying it to the army also. जी। It passed all tests. It will be a waste If to have another thing. You already have established company. you have Always you have to revamp the production basically और you आप have उसको amortization जल्दी होगा. अगर उसी को आप कार्बाइन का ऑर्डर देंगे जी। तो हमने क्या डिसाइड किया कि वी विल बिकम अ ऑथराइज वेंडर ऑफ IRPL. ओके। नाउ ऑथराइज वेंडर और OEM में को आप कंपेयरिंग, इट्स लाइक कंपेयरिंग एप्पल एंड ऑरेंज. सही बात है। बट अनफॉर्चुनेटली द पॉलिसी, but for that we have gone to get a judicial review ओके। through our lawyers. ओके। जी। तो आप कहीं फंसेंगे तो आपका लॉयर आपको हेल्प करेगा. ओके, नहीं, राइटली सेड। चलिए हम एक टैक्टिकल लेवल पे अब आते हैं, और एक टैक्टिकल लेवल पे बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी हम लोग देखते रहते हैं कैजुअल्टीज़ सिक्योरिटी फोर्सेस के आईडीज़ के थ्रू होते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल पे जहाँ पे लोग डिप्लॉयड हैं, माइनफील्ड्स लगे होते हैं, कभी कभी अनरिकॉर्डेड होते हैं वो माइनफील्ड्स, वहाँ पे कैजुअल्टीज़ हो जाती हैं। तो जो ये आप टेक्नोलॉजिकल इन्फ्यूजन की बात कर रहे थे, AI की बात कर रहे थे, तो क्या ऐसा सिस्टम है कि जिसमें हम ये बैटल कैजुअल्टीज़ खास करके ID एक्सप्लोसिव से रोक सकें? दूसरा, नॉन बैटल कैजुअल्टीज़ होती हैं जहाँ पे हम देखते हैं व्हीकल एक्सीडेंट्स हो जाते हैं, वहाँ पे उसको रोकने के लिए तो ऐसा कोई सोल्यूशन है जो हम लोग सोच सकते हैं जिसके बारे में? बिल्कुल है, हम लोगों ने काम किया इसके ऊपर. अच्छा, ओके, तो दैट्स नॉट इन द ओपन डोमेन, सो ऑब्वियसली आई डोंट नो. नो, इट्स ऑल टेस्टेड. बट यू कैन गिव अ ब्रीफ अबाउट इट. मैंने अपनी टीम, जो आई एम वेरी प्राउड ऑफ माय टीम, माय CTO एंड माय अदर पीपल वर्किंग विद मी, जी। instead going for defense expo and all which we did till 2022, जी। we decided कि अब हम लोग फॉरवर्ड एरिया टूर में ऑप्ट करते हैं. FAT. ये FAT SIDM ऑर्गेनाइज करती थी, Okay. अभी भी करती है. जी। वहाँ पे एक स्मॉल बैच ऑफ प्राइवेट इंडस्ट्री आफ्टर ड्यू सिक्योरिटी क्लियरेंस आप जाइए तो कुपवारा, जी। राजौरी, ये सब जगह में अपने लोग गए नॉर्दर्न कमांड में. ओके। ऐसे ही एक ईस्टर्न कमांड का भी है, वेस्टर्न कमांड का भी है. ये स्लोली अभी प्रोसेस शुरू हुआ है कुछ 2 साल से. ओके। कंस्ट्रेंड होते हैं, सिक्योरिटी कंस्ट्रेंड होते हैं, तो एकदम बहुत सारे लोग नहीं हो सकते, देयर आर सर्टेन रिस्ट्रिक्शन. बिल्कुल। तो टीम को जब वहाँ भेजा, 3 अपने इंजीनियर्स को भेजा, CTO को भेजा, उन्होंने बताई कुछ प्रॉब्लम्स, IED की बताई, जी। हाउ IED ब्लास्ट ऑन द ट्रांसपोर्ट कॉन्वॉय, उसके लिए जैमर है, ओके। बनाया जा सकता है. या ऑफ कोर्स. बट अनफॉर्चुनेटली जैमर को हम यहाँ बनाएं, and that is also again for a small limited quantity for military will not make any sense. It's no rocket science जी। to have a long range jammers. You know,
ऐसे एक प्रॉब्लम आई, वहाँ के कमांडिंग ऑफिसर ने बताया कि ड्राइवर को स्लीप आ गई और एक्सीडेंट हो गया। हाँ, बिकॉज फटीग सेट्स इन, बिकॉज बहुत लंबे लंबे ड्यूरेशन तक इंटरव्यू ऑपरेशंस चलते हैं। सो उसके लिए हमने बोला कुछ नहीं है, AI यूज़ करके एंड इमेज एनालिटिक्स ओके, एंड स्मॉल रास्पबेरी पाई का सिस्टम, वी क्रिएटेड समथिंग कॉल्ड अ ड्राइवर अलर्टनेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम। ड्राइवर, ओके, Driver GMS, alertness, okay, yeah, alertness and monitoring. जी, Now this product is good. It can also go in civilian. So सिविल एप्लीकेशन, सिविल एप्लीकेशन, या हम लोग अपनी गाड़ी में लगा सकते हैं। ड्राइवर जो भी जी। ड्राइवर यूज कर रहे हैं, दे कैन नो व्हाट द ड्राइवर इज डूइंग, हाउ मच लाइव दे आई कैन सी। स्कैन करके या मूवमेंट्स को, इट वाज, दिस इज track एक्चुअली करके। बेस्ड ऑन कैमरा Okay. स्कैनिंग योर आई एंड ड्राउजीनेस एंड गिविंग अलार्म। वंडरफुल, तो बनाया, इसके टेस्ट चले हैं अभी, नॉर्दर्न कमांड में अभी भी लगा हुआ है। जी, तो वंस वी आर अगेन वेटिंग फॉर द फीडबैक। ओके, इम्प्रूवमेंट्स के बहुत सारे चांसेस हैं उसमें। ओके, साथ में ऑप्शनल एडिशंस करे जा सकते हैं जी, जी, कि आप जब उसमें 4G का सिम कार्ड लगा देंगे तो आप लाइव फीड भी देख सकते हैं अपने घर में बैठ के वंडरफुल, फॉर द सिविलियन यूज, ओके। कि आपकी गाड़ी को कैसे कौन बैठ रहा है, क्या किसको। ये अच्छी बात है। जो हमारे आर्मी में एक MTO होते हैं, मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट ऑफिसर, तो ही कैन सिट इन द हेडक्वार्टर्स एंड मॉनिटर ऑल हिज व्हीकल्स वेयर एवर दे आर गोइंग, एंड ड्राइवर्स को वो फीड आते रहेगा। ड्राइवर के केबिन से आप बोल रहे हैं फीड आएगा? बिल्कुल आ सकता है, Okay. बट कनेक्टिविटी एंड ऑल दैट अगेन विल बी इशू। अगर इट्स वहाँ एन पे इशू बिकॉज फार फ्लंग एरियाज हैं आर्मी के, तो उसके लिए क्या तोड़ है? अगर आर्मी में रिमोट एरियाज में गाड़ियाँ जा रही हैं तो क्या उसके कनेक्टिविटी लिए कुछ बनाया जा सकता है, कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर 100 किलोमीटर्स और समथिंग, आप दैट कैन बी क्रिएटेड। वी आर आल्सो वर्किंग ऑन वन ऑफ दैट ओके, solution. जी, So that I tell you, कंट्री में देयर इज नो डर्थ ऑफ टैलेंट, कोई कमी नहीं है टैलेंट की, बहुत टैलेंटेड है। जी, स्पेशली यंगस्टर्स, दे हैव सो मच ऑफ एक्सपोजर। बिल्कुल। तो जैमर्स की हम बात कर रहे हैं, जैमर्स की रेंज क्या होगी? अगर एक कॉन्वॉय है, देखिए छुट्टी से लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, कोई लॉजिस्टिक्स कॉन्वॉय जा रही है, राशन जा रहा है, 25 से 30 गाड़ियों का लंबा कॉन्वॉय है, स्ट्रेच्ड अक्रॉस से 2.5 किलोमीटर्स, तो क्या प्रेजेंट जो है वो इफेक्टिव है जैमर्स? आपको पावरफुल जैमर चाहिए। जो अभी लगे हुए हैं वो दे आर नॉट इफेक्टिव बिकॉज उनकी रेंज कम है, जी, उनकी रेंज कम है। अब जैमर को बनाना इज नॉट अ प्रॉब्लम, इट्स बेसिकली RF इक्विपमेंट। जी। मेरे को तो हैंड्स ऑन RF के ऊपर काम किया है मैंने। ओके, एंटीना चाहिए आपको, RF जैमिंग चाहिए आपको, फ्रीक्वेंसी जैम करनी है फ्रॉम 30 मेगाहर्ट्ज और लेस देन दैट अंटिल 6 गीगाहर्ट्ज। Okay. आपने पूरा बैंड कवर कर लिया। ओके, इसकी प्रॉब्लम यह है कि इस छोटे से चीज़ को बनाने के लिए एफर्ट और उसके बाद मार्केट नहीं है, बिकॉज ये तो बैंड प्रोडक्ट है। जी, मैं सिविलियन में नहीं डाल सकता, आर्मी में रिक्वायरमेंट बहुत कम है। वी गेट कॉल्स फ्रॉम नॉर्दर्न कमांड, वेस्टर्न कमांड, ईस्टर्न कमांड। हम लोग उनको बोलते हैं सर बाहर से ले लेते हैं, ओके, ये 3, 4, 6 बनाने का कोई फायदा नहीं है। इट विल बी सो एक्सपेंसिव, जी, स्केल ऑफ इकोनॉमिक्स विल नॉट फॉल। आपके आज यही 10,000 बनेंगे तो कॉस्ट कम आ जाएगी। 5 पीस बनाने हैं तो इट विल बी एक्सपेंसिव। अंडरस्टूड, अंडरस्टूड। So we also believe why reinvent the wheel? हाँ, ठीक है, It makes no sense. जी, पहिया बना हुआ है, आप उसके ऊपर अपना AI डालिए, आप उसमें इमेज एनालिटिक्स डालिए, आप उसकी रेंज बढ़ा दीजिए। जी, दैट्स हाउ इट शुड बी डन। जिसको बोलते हैं कि विद अ प्रोग्रेसिव माइंड। अगर आज मैं कोई चीज़ जो बनी बनाई है इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स और कुछ मैं रशिया ने बनाया हुआ है, बेलारूस इज वेरी गुड विद ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, आई वर्क विद बेलारूसियन कंपनी ऑन दैट। राइट, अब मैं उनको बोलूँ कि मैं यहाँ पे लेकर आऊँ, मैं अपना बनाऊँ, मैं R&D करके वो चीज़ जो बनी हुई है उसको लेके वी कैन डू मोर एडिशनल। अभी इंटरेस्टिंगली आई शुड शेयर विद यू, वी स्टार्टेड वर्किंग ऑन अ रिमोटली कंट्रोल वेपन टरेट, ऑटोनोमस। ओके, इट्स कॉल्ड ऑटोनोमस सेंट्री, अच्छा, networked. ओके, I will invite you for the trials, our internal trials. Okay. The hardware is almost ready. And interestingly, this was developed, the concept was developed by a major in EME. हाँ, यहाँ पे मैं एक्चुअली बोलना चाह रहा था, मैं आना चाह रहा था उस पर कि मैं देखता हूँ कि बहुत सारे यंग ऑफिसर्स स्पेशली जो हमारे आर्मी के स्पेशलाइज्ड टेक्निकल ब्रांचेस में हैं, वो कुछ वन ऑड इनोवेशंस करते हैं, अपने अपने लेवल पे करते हैं, देन दे अप्रोच पीपल लाइक यू नो। तो उसका कोई एक स्ट्रीमलाइनिंग होना चाहिए। ये जो टैलेंट आर्मी के अंदर जो रॉ टैलेंट है, जैसे आपकी टीम भी टैलेंटेड है, ताकि इनका एक डायरेक्ट कनेक्ट हो सके हमारे
इंडस्ट्री से और बाद में लेटरल अब्जॉर्प्शन हो सके इन लोगों का, वाइल इन द सर्विस दे आर वर्किंग विथ यू, वाइल दे लीव सर्विस दे कम, एंड वो जो प्रोसेस है आजकल के क्या होता है, अगर किसी ने आर्मी से रिटायरमेंट लेने की सोची, उसने अपना एक रेज्यूमे बनाया, उसने अपना एक रीसेटलमेंट कोर्स किया, फिर अपने फ्लोट करो 10 जगह CV फ्लोट किया उसने, बट एक स्ट्रीमलाइन प्रोसेस नहीं है। अगर उसका डिफेंस ओरिएंटेड इनोवेशन ओरिएंटेड माइंड है और वाइल इन सर्विस इज क्रिएटेड समथिंग, दोज पीपल शुड बी पिक्ड अप राइट फ्रॉम देयर एंड गॉट इनटू द स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, MSME जो हमारी प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री है। व्हाई नॉट? तो उसके लिए भी एक ऐसा सिस्टम होना चाहिए, चाहे वो SIDM की इनिशिएटिव हो। देखो सब एवरीथिंग कैन नॉट बी डन बाय एन एसोसिएशन। सब चीज़ खुद भी एफर्ट करना पड़ेगा जी। प्राइवेट इंडस्ट्री अगर बोलेगी सब कुछ SIDM करके दे देगी या डीसा करके देगी, नहीं। अभी जैसे मैंने आपको बताया मेजर वेरी इनोवेटिव माइंड, आई एम वेरी इम्प्रेस विद दैट जेंटलमैन। बीइंग एट नॉर्दर्न कमांड ही क्रिएटेड दिस जी। विद मिनिमम मशीनरी। इनसे मेरे से शेयर किया क्योंकि ड्रिल मशीन भी नहीं थी वहाँ पे, तो मैं वेल्डिंग से ही होल करके ड्रिलिंग का काम ले रहा था। ओके। कॉन्सेप्ट बना दिया। अब वही बात है, अप्रिसिएशन नहीं है, रिकग्निशन नहीं है, एंड फाइनली ही केम टू अस। ओके। आप इसमें AI मॉड्यूल्स डालो, ये करो वो करो, वी वर हैप्पी टू डू इट एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। ओके। इजरायली जो प्रोडक्ट पुटबुल करके उन्होंने बनाया है इस तरह का, वो आज ऑलमोस्ट करीब $2.5 लाख ऑलमोस्ट कुछ करो। हम इसको बना के 20-20 लाख रुपए में दे देंगे, जेम पे डाल देंगे जी। आपको। BSF ले ले, CRPF ले ले, प्रिजन वाले ले लें, जिसको लेना ले ले वहां से, and we will sell it globally Yes. because it is will be a very, the good part, it's been developed by an army man. Yes. He knows what is required. End we user. we are just putting our expertise in image analytics, AI, machining and all those things in that. जी। ये फॉरवर्ड एरिया टूर के टाइम पे आप लोगों को ये भी प्रपोज करना चाहिए कि टू शॉर्ट सर्किट द एंटायर थिंग, जो एंड यूज़र है उसको जो दिक्कतें फेस करने में आ रही हैं, वो सीधा अपनी रिक्वायरमेंट एक आप लोगों को जो टीम के साथ बैठे हैं, CTO वहाँ बैठे हैं, पूरी टीम है, इनोवेशन कर रहे हैं, तो वो आइडियाज़ आपके पास शेयर करें ताकि आप उनके लिए और भी नए प्रोडक्ट्स बना सकें। इनको एक आर्मी डिज़ाइन ब्यूरो में प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स बोलते हैं जी। थोड़ा बस प्रॉब्लम अभी ये है कि वो वहाँ पे सिस्टम जो है वो स्ट्रीमलाइन नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट आपने 2023 में निकाल दिए थे, बिल्कुल। करीब 50-55, 20-21 में हम लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। ओके। So it's slow. The process here is slow. I don't know, मतलब maybe lack of manpower to evaluate. तो आपने हमारा एक प्रोजेक्ट दिया किसी एकेडमी को, Okay. इन उड़ीसा, तो उसका कमेंट जो है वो आया 4 महीने बाद। But why to academia? I mean, that comment also will be academic in nature. Academia can play a major role in innovation. Okay. And how? They know, that's their expertise. Okay. The doctorates in nanotechnology, Okay, microsciences. in the technological fields. right. Academia के साथ अगर प्राइवेट इंडस्ट्री काम करे, जी। वो भी I know of a company, I'm associated with that, very reputed company in Russia, जी। in St. Petersburg. The pride I feel going to their office and meeting the CTO, Director of Technology, all over his office, we have Dr. Kalam Saab's pictures Wonderful. in that. Dr. Kalam Saab used to go whenever to Russia. He used to make a point to visit laser system. Okay. Now this is what आप बाल्टिक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स, कुछ एकेडमिया ने मिलके ये चीज़ बनाई जी। ना। वहाँ पे क्या है, उन्होंने गवर्नमेंट आपको एक मैंडेट देती है, रशियन गवर्नमेंट ने बोला हमको ये चीज़ बनानी है, हम ये लोगों को आपको इतना फंड देते हैं, आपको ये जगह देते हैं। उन्होंने वो सेंटर चालू कर दिया। जी। इट्स वन ऑफ द बेस्ट सिस्टम्स इन द वर्ल्ड, आई हैव सीन माई सेल्फ। ओके। मतलब इन ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स आई टेल यू, मैंने वहाँ पे एक टेबल देखी है, कैलिब्रेशन टेबल, जो ज़मीन पे नहीं रहती। अमेजिंग। इट इज़ अ फ्लोटिंग टेबल। जी। तो पूछा उन्होंने कि भाई इसका यूज़, बोले अर्थ का कर्वेचर का भी वो जो नैनो में डिफरेंस है वो भी ना है। ओके। बट दीज थिंग्स कैन ओनली हैपन ना, आपको फंडिंग आए। अभी एक आई थिंक बजट में
द लास्ट बजट जो आया, कुछ 400 कुछ करोड़ रुपया ईयर मार्क किया था इनोवेशन फॉर इनोवेशन इनोवेशन के लिए. यस, दैट वाज इन न्यूज़, क्वाइट द न्यूज़. 400 समथिंग वाज देयर, नॉट इवन 500 आई रिमेंबर. दैट्स हार्डली एनीथिंग. दिस इज नथिंग. जी. आपको डार्पा बनना है तो आपको डार्पा की तरह, डार्पा इससे 10-20 टाइम्स ज़्यादा, 100 टाइम्स मोर पैसा खर्च करता है. दैट इज व्हाई अमेरिकन हैव इनोवेशन. जी. मैं बिकॉज आई एम नॉट अमेरिकन सिटीजन, I cannot go and do anything for DARPA. Doing things here, I can get more money, but boss, that is not the idea. जी. We want to be meaningful, useful to our country. Doing meaningful. Money should be considered a byproduct of anything constructive you do. It should be a byproduct. 100% true. Reasonable profits, reasonable, we are not somebody who look for a super profit. जी. और बात यहाँ कंट्री के डिफेंस और सिक्योरिटी की हो रही है, तो फिर इतना सोचने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए उसमें. सो दोस्तों, आज जो विकी जी से हमने जो आपसे बहुत सारी इंसाइट्स मिली, एंड इन फैक्ट लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर इन दिस वीडियो which will be useful to many of you from the defense background who are watching it while in service or after, people who are retired also. The troika he mentioned of the private industry, the academia and the armed forces, if they join hands and work together in forward area tours में और भी brainstorming हो, तो वो दिन दूर नहीं है कि जब हमारे पास इस तरह की इक्विपमेंट्स होंगे, ऐसे सिस्टम्स होंगे जो कि हमें एक्चुअली में फोर्टिफाई करेंगे. एंड दैट डे आल्सो इज नॉट फार व्हेन DRDO कैन मैच DARPA. Why not? Like again, there is a little disconnect with, and maybe this will be removed again with the present leadership doing their work, the good work they have been doing. एक Canadian scientist, innovator ने, being of Indian origin, he contacted me. Okay. And he has worked all his life. He's very old now. उन्होंने पूरी जिंदगी काम किया है इलेक्ट्रोपल्स फोर्स वाटर जेट पे. Okay. आप बोल रहे थे माइंस की बात. जी हाँ. With 300 ml of पानी, I will share the video with you. I have. Okay. You can make such an impact to activate the mine. Yes, neutralize the mine. जैसे अपने नेवी में अंडर सी में जो होता है. Yes, same. But उसमें सुपर वाटर यूज होता है. सुपर वाटर. उसको वार्म करके डालते हैं. The process, I've not seen it, but yeah, I've learned about it while researching. उसको मैंने बोला, that old man wants to give away his patents and all. जी. First preference being his mother country, तो आप उनको बुलाइए साउथ ब्लॉक में, आप हमारे रक्षा मंत्री जी से मिलवाइए, आप अपॉइंटमेंट लीजिए. ऐसे लोगों को तो मिलना चाहिए. मैंने ऑलरेडी DRDO में जो उनका टेक्नोलॉजी TOT का जो डिपार्टमेंट है डायरेक्टर, उनको पूरी डिटेल शेयर करी. उनके असिस्टेंट से बात करी कि जल्दी करें कुछ. जी. नहीं तो वो चीज़ कोई और लेके आप ड्रोन बना सकते हो, फिर वो ब्यूरोक्रेटिक हैसल में फंसने वाला है. तो मेरा तो रिकमेंडेशन होगा कि यू शुड फर्स्ट अप्रोच द लीडरशिप, एंड पहले वहाँ से बात हो तो वो ड्रिवन होगी फिर. एंड आपके साथ आई विल शेयर द वीडियो. देयर आर 2 or 3 वीडियो. यू कैन ब्रेक स्टोन्स, you can demining, neutralization of landmines. You can cut metal. Okay. That can even be used for scrapping. And it's not being used anywhere right now in the country or in the near vicinity in the subcontinent? No. Some company in America will buy it, further develop it. Okay. They will make a drone which will carry and go and, with that splash of force. It will be the most economical thing to do. 300 ml पानी बिल्कुल आपका एक माइन को डीएक्टिवेट कर सकता है. एंड सो मच ऑफ ह्यूमन कैजुअलिटीज कैन बी स्टॉप्ड. सो टुडे वी गॉट लॉट ऑफ इनसाइट्स. और आज मुझे एक चीज़ का तो यकीन हो गया है कि हम सब लोग जो आर्म्ड फोर्सेस में देश के लिए काम कर रहे हैं, उतना ही काम, अगर उससे ज़्यादा नहीं तो उतना ही काम विकी जी जैसे लोग जो बाहर से कर रहे हैं एज अ डिफेंस, प्राइवेट डिफेंस इंडस्ट्री, एज अ MSME. मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा. और ये जो आपके इनसाइट्स हैं, मैं चाहूँगा कि इन सब को आप एक क्रॉनिकल करें और एक पेपर, एक कॉन्सेप्ट पेपर सा बनाएं. एंड आई विल डेफिनेटली ट्राई टू प्लेस दैट पेपर टुवर्ड्स द लीडरशिप ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस. मैं चाहूँगा कि मैं जाकर खुद आर्मी के चीफ, वाइस चीफ के से अपॉइंटमेंट मांगूँ और जाके उनको ये दिखाऊँ कि इस तरह की इनोवेटिव थिंकिंग वाले लोग भी हमारे बीच मौजूद हैं. बिल्कुल, आई एम विद यू कर्नल. सो आई विल कीप यू इन द लूप. आपको सब चीज़ें मैं शेयर करूँगा.
और idea is, we should, when if we are talking about being self-reliant, Atmanirbhar Bharat in defense and other things, we have to have that mindset. जी What we are lacking is the mindset. Mindset आप change कर लो, आप देखो. जी बिल्कुल. सो ऑन दैट नोट विकी जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ आके जुड़ने के लिए, और मैं आपसे और भी चीज़ें शेयर करता रहूँगा और सीखना चाहूँगा, और ऐसे छोटे छोटे सब्जेक्ट्स के ऊपर हम वीडियोस बनाते रहेंगे ताकि हमारे व्यूअर्स देखें और काफ़ी कुछ उनको सीखने को मिले. थैंक यू फॉर वॉचिंग. इट्स रियली बीन अ प्लेजर. Thank you, Colonel. Thank you for inviting me. Thank you.